ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ کسانوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں مرکزی حکومت متنازع زرعی قوانین واپس لینے پر مجبور ہوئی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر کا کہنا ہے کہ کسانوں جیسی قربانیاں ہی آرٹیکل 370 اور 35A کے دوبارہ واپسی کا باعث بنیں گی اور حکومت خصوصی موقف کی بحالی کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے 116ویں یوم پیدائش کے موقع پر پارٹی کارکنوں کے ایک بڑے اجتماع سے فاروق عبداللہ نے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ حال ہی میں بے گناہ لوگوں کا قتل کیے جانے کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسے اور بھی کئی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے عامر کی لاش اہل خانہ کو واپس کرنے کی مانگ کی۔ NC کے صدر نے کشمیر میں میڈیا پر عائد پابندیوں کے بارے میں بھی بات کی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے NC کے نائب صدر عمر عبداللہ اور دیگر سینئر لیڈروں کے ہمراہ نسیم باغ سری نگر میں واقع اپنے آبائی قبرستان میں مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے لیے فاتحہ خوانی کروائی۔ یتو پتہ یل 700 زیادہ کسان مود ان پہ بیل کسانن ہز واپس نین تم 3 بلہ تمو کسانوں قربانی دت اس تھا پہ قربانی دن پن حق واپس انہ یہ تھو یاد اس یہ وعدہ کورمت کہ 65 تو 35 انو واپس یہ ریاست انو واپس یہ قربانی دن تک تیار اس لیے گھبراؤن گھس ونان ہے خبر کار یہ ہو تم ون چان صرف یہ اوقات تمس خدایس تھپ کرمت ہمت آسس امید آسس کہ بہت صحیح رت پہ انشاءاللہ اس گھو کامیاب یت من ست ونو پان ون پھل اتحاد تو اتفاق بڑا ضروری ہے اتحاد تو اتفاق پھل لکن تمن جوڑن من گھن تیل بن جماعت بن یل ساری یت رز لمو اکوٹے تیلی ترو اپور یہ ضروری اگر یہ آواز تلان تم کوشش دباؤن تم تو سان اخبارن میڈیاس کت کن تمن پہ دباؤ اگر تم کھانا چیز زور زور لکھان سیدے تھانس میں بلاوان یہ حالت سان تان ونان یہ آزاد یہ تیز آزادی کتھی چھن لوگ ہسان کی کرت مارک تم 3 بے گناہ یہ لوگوں شور کور یہ چیز اتحاد تو اتفاق تو مضبوطی یہ لوگوں آواز تج تم گئی آئی پھر ان جسم واپس دن کہ تم ہکن تم پن طریقہ دفن کرت ون تک انسان بچار اس ون تو قبر من تم سے مول موج پیاران تک گولس من عمر صاحب گومت تہد گر ون چان تہ کورک نا واپس کت آسان اتھے پہ بے گناہ مارمت حساب یہ اس لیے ہمو حساب دے ہوتے حساب تمہیں نش بچن شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سری نگر نے آج اپنا 39واں سالانہ یوم منایا۔ اس سلسلے میں سری نگر کے SKICC میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جلسے سے خطاب کیا۔ یہاں مہمان کی حیثیت سے شریک اسکمز کے گورننگ باڈی کے چیئرمین بھی حاضرین میں مخاطب ہوئے۔ انہوں نے اسکمز انتظامیہ کے کاموں کی ستائش کی۔ طب و صحت کے اس بڑے ادارے کی طرف سے جموں کشمیر میں صحت عامہ کی دیکھ بھال اور کووڈ پر کنٹرول کے امور کی بھی خوب سراہنا کی گئی۔ LG نے ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ نئے ویریئنٹ اومیکرون کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کریں۔ دہلی ایمس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ اگر لوگ کووڈ سے بچاؤ کے بنیادی SOPs پر عمل کریں تو اومیکرون ویریئنٹ سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس دوران LG منوج سنہا نے اسکمز کے مختلف پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا۔ یہ افتتاح کیا کالج آف پیرامیڈیکل سائنسز اور ایڈوانسڈ پیڈیاٹرک سینٹر اسکمز میں شروع کیا گیا ہے۔ یہاں اسکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر AG آہنگر کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ سب کو پتا ہے، مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، اور جس نئے ویریئنٹ اومیکرون کی چرچا ہو رہی
लोग कह रहे हैं कि दस्तक दे रहा है। बहुत से देशों ने अपने बॉर्डर को सील करने का काम शुरू कर दिया है। ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये वेरिएंट बहुत बड़ी संख्या में म्यूटेशन दिखा रहा है। इस वेरिएंट के निदान का सबसे स्वीकृत और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका मैं समझता हूं RT-PCR टेस्टिंग है। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता का पूरा उपयोग इस स्कीम्स को करना चाहिए। वैक्सीनेशन के अलावा ट्रैकिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन पर ध्यान रहे, इसमें आप सब प्रशासन की मदद करिए। लोगों को जागरूक बनाना हो। सीनियर डॉक्टर से भी मैं आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर अगर आपकी ओर से बात कही जाएगी कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें, मुझे लगता है कि संक्रमण को रोकने में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रशासन की ओर से हम प्रतिबद्ध ढंग से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी ओर से कोई बात कही जाती है तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट समाज पर ज्यादा होता है। However, this pandemic, as we've all seen, has impacted all walks of life. It's not only healthcare, it's education, it's trade, it's travel, it's economy, it's even politics. Though I have been a victim of political, regional and administrative apartheid of worse order, I stood firm on the ground for the pace and progress of this institution and develop any further to whatever extent possible relentlessly. So because just I can carry the burden, that does not mean that it has been light or it has not been heavy. Every loss gained for me has inspired me to do what I should try to do the next. दुनिया भर में फैले कोविड-19 ने लाखों लोगों की जानें ली और कई लोग अभी भी इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। हिंदुस्तान में भी इस बीमारी ने कोहराम बर्पा कर दिया और इंसानी जानों का काफ़ी ज़िया हुआ। जम्मू कश्मीर भी इस बीमारी की जद में आया और कई लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। यूटी इंतज़ामिया वबा की वजह से यतीम हुए बच्चों और बेवाओं को माली इमदाद फराहम करने के साथ साथ आगे ज़िंदगी चलाने में इन्हें काफ़ी मदद फराहम कर रहा है। पेश खास रिपोर्ट। दिसंबर 2019 में फैली कोविड वबा से जम्मू कश्मीर भी बच नहीं पाया। यहाँ भी इस बीमारी ने कहर ढाया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोविड के चलते गुज़िश्ता जुमे तक जम्मू कश्मीर में 4,479 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। वादी में 2,294 और जम्मू खित्ते में 2,185 अफराद की मौत हुई। सबसे ज्यादा अमवात जिला जम्मू में हुई, जहां 1,157 लोग फौत हुए। कोविड से फौत हुए अफराद में बेशतर ऐसे लोग थे जो अकेले अपने कुनबे के कमाऊ थे और इसी वजह से उनके बच्चे और बीवियां बेसहारा हो गई। ऐसे कुनबों के हालात जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूटी हुकूमत ने संजीदा इक़दाम शुरू किए और सक्षम स्कीम को लॉन्च करके इन बेसहारा लोगों की मदद की शुरुआत की। सरकार ने फौत हुए अफराद के अहले खाना को हाल ही में फीकस 50,000 रुपए फराहम करने का फैसला किया है। पिछले दिनों ऑनरेबल एलजी साहब ने सक्षम स्कीम करके स्टार्ट की थी, विच इज़ बीइंग रन बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उसके तहत जो लेडीज़ जो अगर कोई विडो रह गई थी ब्रेड विनर की डेथ पे तो उसको पेंशन मिल रही है और उसके बच्चों को जो 12th तक बच्चे हैं उनको 20,000 रुपया साल का स्कॉलरशिप और जो 12th से ऊपर पढ़ रहे थे उनको 40,000 रुपया स्कॉलरशिप जो है वो सोशल वेलफेयर महकमा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा 29 तारीख को ही स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑर्डर आया है जिसमें जो भारत सरकार ने ऑर्डर किया था कि 50,000 रुपया पर डेथ जो है वो फैमिली को दिया जाएगा जो डिपेंडेंट होगा उसका, वो केसेस भी हम प्रोसेस करें। एक तरफ सरकार कोविड से बेसहारा हो चुके लोगों की मदद के लिए कई इक़दाम कर रही है, दूसरी जानिब मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमें भी ऐसे लोगों के हालात जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अपनी बिसात भर काविशों में मसरूफ हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसी तंजीमों में शामिल है जो कि बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए आगे आई है। जम्मू रेड क्रॉस के एजाजी सेक्रेटरी विनोद मल्होत्रा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान
सोसाइटी ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया के ताउन से ऐसे कुनबों की निशानदही करके उन्हें माली और दीगर किस्म की इमदाद फराहम की। किसी के माँ बाप चले गए हैं तो बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, तो उनको सक्षम स्कीम के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है। और उसके अलावा रेड क्रॉस में जब वो अप्रोच करते हैं, जितनी हमसे बन पाती है हम उनको हेल्प करते हैं और बाकी उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो सोशल वेलफेयर या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को अप्रोच करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। प्रॉपरली हम उनको गाइड करते हैं। और बड़े बच्चे ऐसे आए जो कह रहे हैं कि हमारे ड्यूरिंग कोविड हमारे पापा का बिजनेस खत्म हो गया, कुछ हो गया, उनके लिए हमने कॉलेजेस को, जैसे हमारे पास स्कीम है कि रेड क्रॉस फंड से उनकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू की जा सकती है, तो हम उनकी फीस एग्जम्पशन के लिए हमने बड़े बड़े लोगों को ये लेटर लिखी और उनकी फीस एग्जम्पशन हो भी की। आम लोग सरकार और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से किए जा रहे ऐसे इक़दामात की खूब सताइश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आम लोगों को भी इस अजीम काम के लिए अपना अहम रोल निभाना होगा ताकि कोविड से फौत हुए अफराद के अहले खाना मुसीबतों में न उलझे। 10,000 है या 50,000 है, जो भी अमाउंट है, मैं समझता हूँ एक इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू हुआ है और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में आनी चाहिए। ये जो ढांचा और एक जनरेशन हमने खो दी है उसकी भरपाई जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से ही होगी। और ये देखते हुए जो यहाँ के सरमायादार लोग हैं, जो बड़ी बड़ी NGO चलाते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि वो जो नेग्लेक्टेड बच्चे हैं या फैमिलीज हैं, रूफलेस हैं, छत नहीं है इस सर्दी के विंटर के सीजन में, उनको रिहेबिलिटेट करें। कोविड से फौत हुए अफराद के अहले खाना को हुकूमत की तरफ से फीकस 50,000 रुपए इमदाद देने के फैसले को अमलाने की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत के मुताबिक जिला इंतजामिया की टीमें बजाते खुद दौरा करके ऐसे कुनबों की निशानदही करेंगी और जो माली इमदाद मुतासरीन को दी जाएगी वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 116वां यौम पैदाइश जम्मू में भी मनाया गया। इस सिलसिले में शेर कश्मीर भवन में जलसा मुनक़्क़िद हुआ और यहाँ मरहूम लीडर को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ जमा थे। NC के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से दिखाए हुए रास्ते पर चलना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने 1947 में जो नारा दिया था शेर कश्मीर का क्या शाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, आज ज़रूरत है इस नारे की। पूरे देश के अंदर आज जो हालत बने हुए हैं, जो ये नारा है, यही एक आपसी भाईचारा को मजबूत करता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज के दिन पे ये याद करना चाहिए कि जो शेर कश्मीर ने रास्ता दिखाया हुआ है, जो शेर कश्मीर ने एक अच्छे ढंग से इस रियासत को ले जाने के लिए बातें काम किए हैं, उन्हीं कामों को हम आगे ले जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने कहा कि पार्टी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मिशन से हट गई है। इन्होंने साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाया कि गादरबल के NC कारकुनान पार्टी हाईकमान से खुद को दूर और अलग थलग महसूस कर रहे हैं। शेख अशफाक जब्बार गादरबल के MLA रह चुके हैं। इन्होंने आज मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद जब्बार लार में पार्टी कारकुनों से जलसे से मुखातिब हुए। जब्बार के मुताबिक वो शेख अब्दुल्ला के सेकुलर सोच और सबको साथ लेकर चलने के उनके नुक्ते नज़र के मीरास को परवान चढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। शेख अशफाक जब्बार कहते हैं कि वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नक्श कदम पर चलते रहेंगे क्योंकि हमें फ़िरक़ों में बांटने पर तुली हुई ताकतों के खिलाफ खड़े होकर अपने लोगों के शनाख्त और वक़ार की हिफाजत करना है। हमने अहद किया कि शेर कश्मीर का जो असल मिशन है उसको हम आगे ले जाएंगे और जो इस वक्त लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस मिशन से दूर होती जा रही है, जो बेसिक जो हमारे जियाले है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी जमात के लिए, आज कहीं ना कहीं वो अपने आप को आइसोलेट पा रहे हैं या अपने आप को वो अलग थलग से पा रहे हैं। तो हम
कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मकामा बीरवा का दौरा किया। पार्टी के सीनियर ब्लॉक सदर और देरीना रुकन मरहूम ख्वाजा सनाउल्लाह डार के लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत करने के लिए उमर अब्दुल्ला इनके घर पहुंचे थे, जहां उमर अब्दुल्ला ने मरहूम ख्वाजा सनाउल्लाह डार के अफराद खाना की ढारस बनाई। इनके हमरा सियासी सलाहकार तनवीर सादिक और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और जल्द से जल्द इंतखाबात अपनी पार्टी की अव्वलीन तरजीहात है। इन्होंने कहा कि अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ जोड़ना कुछ सियासतदानों की बौखलाहट है। अनंतनाग में अपनी पार्टी ख्वातीन विंग के इजलास से खिताब के बाद हिलाल शाह ने ये बातें बोली। इस मौके पर ख्वातीन विंग के सदर दिलशाद शाहीन और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इन लीडरान ने ख्वातीन की बाख्तियारी को लेकर अपनी पार्टी को मौका पर भी रोशनी डाली। इजलास में अपनी पार्टी ने ख्वातीन के लिए मेंबरशिप मुहिम का भी आगाज किया। देखिए, हमारा भी मानना यही है कि लोगों की हित के लिए हमेशा एक पॉलिटिकल सेटअप ही ठीक रहता है। हमारी मांग है हमारी पार्टी की कि इलेक्शन जल्द हो और स्टेटहुड हमें वापस मिले। हमारे जो कायद है अल्ताफ साहब, वो निकल के हमने उनका साथ दे के लोगों के मुसीबत में हमने कहा कि उनके साथ शाना बशाना हम चलेंगे। रही बात बीजेपी के बी टीम, अपनी पार्टी हमारी पार्टी है, हमारा कोई बीजेपी के साथ लेना देना नहीं है। अपनी इश्यूज लेडीज़ के हैं, हम चाहते हैं कि लेडीज़ आगे आ जाएं, वो भी अपने हक के लिए लड़ें। उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लेडीज़ को तो एक अहम रोल है इसमें, और जब लेडीज़ आगे आ जाती हैं तो एक मुझे लगता है एक फैमिली साथ चलती, एक लड़की एक फैमिली चलती है साथ। और इंशाल्लाह लेडीज़ का अच्छा काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि लेडीज़ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बर्फबारी हो रही है। गुरेज के अलावा तुलेल और बख्तूर इलाकों से भी ताज़ा बर्फबारी की इतलात है। वादरक बर्फबारी के पेश नज़र गुरेज इंतजामिया ने पहले ही बांडीपुरा गुरेज और गुरेज तुलेल सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। रामबन में, बानिहाल और पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में भी सुबह सवेरे से ही बारिश और हल्की बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। मशहूर सियाती रिजॉर्ट सोनामर्ग में भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पुलवामा के संगरोनी और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात के पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जिला शोपियां के पहाड़ी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। जम्मू खित्ते के पुंछ और राजौरी अजला को जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर जुमे की सुबह सवेरे से ही वक्फे से बर्फबारी होती रही। बर्फबारी जारी रहने की वजह से ट्रैफिक के नकलो हमल के लिए इस रोड को बंद कर दिया गया। मुगल रोड पर पीर की गली और दबजन इलाकों में अभी तक 1 फीट के करीब बर्फ जमा हुई है और अभी भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से एहतियातन इस रोड को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। उधर जिला शोपिया के हीरपुरा इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। मुगल रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है और रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल करने की कोशिशें बर्फबारी रुकने के बाद ही शुरू की जाएंगी। तवारकी मुगल रोड है, वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है। बोरी हालन का ये इलाका है और यहाँ से अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह ही इस रोड को जो है ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से, यानी कि पुंछ और शुपियान दोनों तरफ से इस रोड को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर मौसम विभाग की माने तो कल सुबह तक ये बर्फबारी जारी रह सकती है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू। सियाती मुकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई। इस दौरान सयाहों के साथ सियाहत से जुड़े लोग भी काफ़ी खुश नजर आए। गुलमर्ग में मौजूद सयाह ताज़ा बर्फबारी देखकर काफ़ी लुत्फ ले रहे हैं। उधर गुलमर्ग के गंगडोरी और अफरवट में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में कुछ सयाहों ने कहा कि वह बर्फबारी के मुंतज़िर थे और उनके ख्वाब पूरे हुए। गुलमर्ग में सियाहत से जुड़े लोगों ने भी मुसर्रत का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुलमर्ग में बर्फबारी से ही सियाहत से जुड़े लोगों के रोजगार में इजाफा होता है। फर्स्ट टाइम में, और यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आ चुके हैं। अब काफी अच्छा लग रहा है। ट्रिप था सफर का, तो हम बिल्कुल भी सोचे नहीं थे कि स्नो मिलेगा। अच्छा। बट ऊपर वाला से दुआ किए थे और ऊपर वाला ने आज हमारा दुआ कबूल कर लिया। ये चीज मतलब इतना क्या हो रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कश्मीर बहुत अच्छा जगह है, सबको आना चाहिए। लाइफ बहुत अच्छे हैं और जो मीडिया में दिखाते हैं कश्मीर के बारे में टोटली फेक है। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छे लोग हैं। बढ़िया, हर साल आओ, एंजॉय करो और बहुत अच्छी जगह है। बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, मस्त रहो। मिनी स्विट्जरलैंड।
दीगर इलाकों की तरह पुंछ के बालाई इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई, जबकि जिले के ज्यादातर इलाकों में शदीद ज़ालाबारी और बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया। ज़ालाबारी और बारिश की वजह से पुंछ सिटी में कई जगहों पर नालों का गंदा पानी घरों और दुकानों में दाखिल हुआ। सड़कों पर मौजूद गड्ढों में पानी भर जाने से पैदल चलने वालों को ज़हनी और जिस्मानी कोफ्त का सामना करना पड़ा। नालों की सफाई न करने पर लोग इंतजामिया के खिलाफ तंज कसते नजर आए। पुलवामा में नए वायरस से निपटने के लिए महकमे सेहत की जानिब से कोविड से बचाव के लिए घर घर दस्तक की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा के अलावा कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट कायम किए गए हैं। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की मालूमात फराहम कराई जा रही है। बीएमओ पुलवामा ने लोगों से एहतियात बरतने और महकमे सेहत के साथ ताउन की अपील की है। घर दस्तक हम प्रोग्राम इस वक्त चला रहे हैं, उसमें हर घर जाकर हमारी जो टीम्स हैं, हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी जो आशाज हैं, वो हर घर पे दस्तक जाके ये वेरीफाई कर रहे हैं कि जहाँ पर वैक्सीनेशन किसी की मिस हो गई है या सेकेंड डोज देना है वो हमें बताते हैं और हम वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से इस ब्लॉक में कर रहे हैं। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरात के तनाजुर में पुलवामा में इंतजामिया मुस्तैद हो गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से RT-PCR लेबॉरेटरी का क़याम अमल में लाया गया है। पहली और दूसरी लहर के दौरान पुलवामा में RT-PCR लेबॉरेटरी न होने की वजह से यहाँ सिर्फ नमूने हासिल किए जाते थे, जबकि टेस्ट के लिए नमूने श्रीनगर भेजे जाते थे। मुकामी लोगों के साथ साथ DDC अरकान ने इंतजामिया की तरफ से की जा रही तैयारियों को ज़रूरी बताया। अच्छा इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने, जो ये RT-PCR लैब यहाँ एस्टेब्लिश की है। जो ये यहाँ जो सैम्पलिंग यहाँ ली जाती है, सैम्पलिंग पहले यहाँ से श्रीनगर भेजी जाती है, उसके बाद यहाँ से रिपोर्ट्स आते हैं। तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है कि अब यहीं पे उनको ये जो फैसिलिटी है वो यहीं पे उनको मिलेगी। श्रीनगर शहर में आज नगीना इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक अदबी तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस अदबी महफिल के दौरान नगीना इंटरनेशनल के सालनामा समेत कई किताबों का इजरा अमल में आया। नामवर शख्सियात और मुसन्निफ़ीन इस तकरीब में शरीक रहे। इस मौके पर मुंतज़मीन ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि इस तरह के जलसे उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में मुआविन साबित होंगे। ये सालनामा 2021 का है और इसके साथ साथ ही कुछ किताबें भी इजरा हुई। उन किताबों में एक फिक्शन निगारी वैशी सईद और फिक्शन निगारी जो शारिक अदील ने लिखी है, वो यूपी का रहने वाला है। और उसके बाद दूसरी किताब जो इजरा की गई है वो है वैशी सईद की अफसान निगारी मासरे के तकाबुल में, तो वो दूसरी किताब इजरा हुई। तीसरी किताब प्रोफेसर कुद्दूस जावेद की किताब मेमार अदब के नाम से इजरा की गई। चौथी किताब जो है वो खालिद हुसैन की है, मैं ज़िंदा हूँ। ये सवानिया है उनकी, ये चौथी किताब इजरा की गई है। पांचवी किताब जो इजरा की गई है वो तालीमी नफ्सियात पर है मबनी है, ये रशीद कानसपुरी की किताब है। इन किताबों का भी इजरा इसके साथ साथ हुआ। हमारे लिए खुशी का मुकाम ये है कि आज कश्मीर के जितने भी मोतबर लिखने वाले हैं और अदब नवाज है, उन सब का एक बड़ा मजमा यहाँ पर जमा हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जम्मू कश्मीर की सियाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से महकमे सियाहत ने वेरीनाग फेस्टिवल का एहतमाम किया। फेस्टिवल का मकसद कश्मीर के खूबसूरत मकामात को दुनिया के सियाहती नक्शे पर लाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को इन मकामात की जानिब राग़िब किया जा सके। पेश है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ख़ास रिपोर्ट। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की माशी एतबार से अहम तरीन सनत यानी टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह मुतासिर हुई है। इस सनत को नई रूह बख्शने के लिए अब महकमे सयाहत मुतहरिक नजर आ रहा है।
इसी कड़ी के तहत वेरीनाग अनंतनाग में वेरीनाग फेस्टिवल का एहतमाम हुआ। फेस्टिवल का मकसद गेटवे ऑफ कश्मीर वेरीनाग को दुनिया के सयाहती नक्शे पर लाना है। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि पैंडेमिक चैलेंज के बावजूद भी हमने जो है पब्लिसिटी की जो विग्रस कैंपेन जो फॉलो करी है विद इन कंट्री और जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारे टूर ट्रैवल फैटर्निटी भरपूर साथ हमारा दे दिया। जगह जगह हमने जो है रोड शोज़ करे हैं और अभी जो हाल ही में हमने एक हफ्ते का आइकॉनिक फेस्टिवल किया, जिसमें ख़ास तौर से पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हाउस बोट फेस्टिवल हुआ, जो डल लेक में हमने जो है फ्लोटिंग थिएटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और वो दुनिया भर में बड़ा मशहूर हो गया, जिससे काफ़ी बज़ क्रिएट हो गई। और आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे हमने जो फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है, विंटर कार्निवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है या इसी तरह से क्रिसमस फेस्टिवल है। फेस्टिवल के दौरान शाजिया बशीर जैसे नामी फनकारों और दीगर शुरका ने मुख्तलिफ मौसीकी व तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। मौजूद हाजरीन ने मुजाहिरों का लुत्फ उठाया। मकामी लोगों और सयाहों ने ऐसे प्रोग्रामों को खुश आइन करार दिया। काफ़ी सुंदर जगह है ये, इसकी यहाँ की रिवर्स, माउंटेन्स, व्यू वगैरह हर चीज़ काफ़ी सुंदर है। मतलब मैंने कहीं और किसी और हिल स्टेशन पे नहीं देखा ये सब। वेरीनाग में एक गंडोला का जो सिस्टम है उसका प्रोग्राम बना लो। इन्होंने बनाया भी, कुछ काम भी किया, उस पर हमारे बोर्ड लग गए। उस वक्त से हमने फिर देखा ही नहीं, उसकी बात नहीं हुई। इनको वेरीनाग की तरफ नजर ही नहीं है। जब कोई टूरिस्ट वेरीनाग को देखता है वो अपने आप में हसरत करता है कि इतनी अच्छी जगह, नेचुरल ब्यूटी जहाँ है, ये चश्मा दुनिया में किसी और जगह नहीं है। इसीलिए जहांगीर बादशाह ने बताया था कि मुझे यहाँ दफन किया करे। खूबसूरत मकामात को मंजर-ए-आम पर लाने के अलावा मजहबी मकामात को भी पिलग्रिमेज टूरिज्म के नक्शे पर लाने के लिए कोशिशें की जा रही है। जुनूबी कश्मीर में ऐसे कई दिलचस्प मकामात हैं जिन्हें मंजर-ए-आम पर लाने के लिए इंतजामिया अमली तौर पर कोशा नजर आ रहा है। न सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं, साथ साथ रिलीजियस पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस। अनंतनाग की अगर बात करें, अशमुकाम श्राइन है, ज़ैनुद्दीन वली साहब की श्राइन है, अनंतनाग टाउन में श्राइन है, तो हमारी खीरम श्राइन है। बहुत सारी ऐसी श्राइन्स हैं जिनको भी टूरिस्ट सर्किट पर लाने की ज़रूरत है। अभी जो लोग आ रहे हैं, कहीं जो पहलगाम के रास्ते में कुछ श्राइन्स हैं ज़रूर रुकते हैं, पर बाकी जगह की भी हम मैपिंग करवा रहे हैं, उनको भी बाहर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आएँ और महफूज फील करें। वाज़ेह है कि कश्मीर के लिए सयाहती सनत माशी एतबार से काफ़ी अहम है, इसलिए कश्मीर के खूबसूरत मकामात को दुनिया के सयाहती नक्शे पर लाना बेहद ज़रूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर खादरी की रिपोर्ट। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तामीर करने का मामला फिर एक बार गर्मा गया है। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बांडीपुरा और कुछ फुटबॉलरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके ट्रैक को स्टेडियम के बजाय किसी और जगह तामीर करने का मुतालबा किया। वाज़ेह के स्टेडियम में ट्रैक तामीर करने के संग बुनियाद 1 अगस्त 2019 को रखी गई थी। तब से लेकर आज तक इस मामले पर रस्साकशी जारी है। रिसेंटली हम एक मैच खेल रहे थे बांडीपुरा में, अभी स्टेडियम में, जो एसके स्टेडियम बांडीपुरा है। तो उसी दिन एक इंजीनियरिंग टीम आई थी वहाँ पे, स्पोर्ट्स काउंसिल ने भेजी थी। तो हम फिर वहाँ पे गए थे, हमने बोला था कि कौन सी टीम आई। तो वहाँ से जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने फिर बोला कि जो एथलेटिक टर्फ जो बनने वाला था, जिसका प्रपोजल है पिछले 3-4 सालों से इसको पूरे मेन्यू में आ रहा है जो स्टेडियम के रिलेटेड। तो फिर हमने उनसे बात की कि इसमें कितना स्टेडियम इन्वॉल्व होता है, पूरे जो इंजीनियरिंग टीम थी कितना स्टेडियम इन्वॉल्व होता है, कितना इसमें फिर ग्राउंड रहता है, क्रिकेट के लिए कितनी जगह रहती है, फुटबॉल के लिए कितनी जगह रहती है, बाकी टीम्स के बाकी गेम्स के लिए कितनी जगह रहती है। तो फाइनली उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अगर ऐसा टर्फ यहाँ पे बनेगा, अगर सिंथेटिक टर्फ यहाँ पे बनेगी तो एकदम ही वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ना क्रिकेट की रहेगी, ना फुटबॉल की रहेगी, ना बाकी गेम्स की रहेगी। कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन आज केसी स्टेडियम जम्मू में शुरू कर दिया गया। 22 दिसंबर को ये लीग इख्तिताम पसीर होगी। 17 दिनों तक जारी रहने वाले मुकाबलों में मुल्क भर से 16 टीमें शामिल हो रही हैं। ऋतिक ज्योतिषी ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि नौजवानों को इकट्ठा करना इस टूर्नामेंट का मकसद है और जिला वतन कम्युनिटी को अपने टैलेंट का मुजाहरा
पेश करने का मौका दिया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक कश्मीरी पंडितों के लिए प्लेटफॉर्म यकीनी बनाने के मकसद से भी इक़दाम किए गए। एक और मुंतज़िम चेतन जी ने हमें बताया कि नौजवानों को बुरी आदतों से दूर रखने के लिए उनका तारुफ खेल के मैदान से कराया गया है। साबिक MLC सुरेंद्र अमरदार, साबिक MLC अजय भारती, PTI ब्यूरो चीफ अनिल भट्ट और IGP PHQ गरीबदास ने टूर्नामेंट की इस तकरीब में शिरकत की। IGP PHQ गरीबदास ने सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए इन काविशों को सराहा। फेस्टिवल की तरह ले रहे हैं, ये सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी विद इन कम्युनिटी हमारे को बूस्टअप करने के लिए, हमारा मोराल बूस्ट करने के लिए यंगस्टर्स का साथ साथ इसमें कोई एज बार नहीं है। इसीलिए हम ताकि जितना भी हमारा कम्युनिटी का यूथ है, साथ साथ जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे छोटे लड़के हैं, उनको चांस मिले, उनको उनका मोराल बूस्ट हो। इस कराने का मकसद ये है कि एक तो ड्रग फ्री इंडिया हो जाएगा, ठीक है, जो भी लोग आजकल नशे में घुस रहे हैं, ठीक है, उससे हमें थोड़ा छुटकारा मिलेगा लोगों को, उनको थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाएगा। कि हमारे बच्चे जो नई जनरेशन है उनको अगर हम इतना इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम देंगे तो बहुत सारा अच्छा स्पोर्ट्स में भी हम ओलंपिक लेवल तक जा सकते हैं। सारे बच्चे यहीं से निकलेंगे, ऐसे ही हमारी प्रयास रहेगा और पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे इवेंट्स और भी ऑर्गेनाइज किए। लद्दाख में तिब्बतन सेटलमेंट फ्रीडम सपोर्ट ग्रुप ने खरदोंगला तक बाइक रैली का एहतमाम किया। रैली का मकसद चीन में मुनक्किद होने वाले बीजिंग सरमाई ओलंपिक का बाइकआउट करना है। रैली में शामिल अफराद का कहना है कि चीन ने हमेशा दागाबाजी की, इसलिए बीजिंग सरमाई ओलंपिक का बाइकआउट किया जाना चाहिए। चाइना में जो फरवरी 4 में जो बीजिंग ओलंपिक होना है, उसकी बहिष्कार के लिए हम यहाँ पे पहुँचा है। और साथ ही साथ में अमेरिकन बास्केटबॉल का एक प्लेयर है जिनका नाम है एनएस कैंटर, अभी लीगली उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया एनएस कैंटर फ्रीडम, तो उसको मैं हमारा मतलब टिबेटन कम्युनिटी की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेन मकसद यही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा दाखिलों को मुमकिन बनाने की गरज से महकमा तालीम की जानिब से एनरोलमेंट मुहिम जारी है। इसी सिलसिले के तहत गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्रिंगसो में एक तकरीब का एहतमाम हुआ जिसमें स्कूली बच्चों के वालिदैन और सरपरस्त बड़ी तादाद में शरीक रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने सरकारी स्कूलों के हवाले से महकमा तालीम के इक़दाम और सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा दाखिलों को मुमकिन बनाने के लिए वालिदैन से ताउन की अपील भी की गई। हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं, हर एक स्कूल में, हर ये पूरी यूटी में ये एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है, तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो जाए कि सरकारी स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है और बहुत सारे फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ICT लैब्स है और टिंकलिंग लैब्स है बहुत सारे पे, स्मार्ट KG क्लासरूम्स है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कितनी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। आप अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिट करा के देखिए और फिर आप चेंज देखिए, इसलिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह पे रखा। आरी पंथन बिरवा से ताल्लुक़ रखने वाले समीरा फारूक नामी शादीशुदा खातून कई रोज़ कबल जम्मू में बस अड्डे से लापता हो गई। इस सिलसिले में आरी पानत मेन चौक में मर्द व खातिन ने एहतजाज किया, उनकी बाजियाबी का मुतालबा किया। एहतजाज में शामिल घर वालों के मुताबिक समीरा अपने वालिद और दूसरे रिश्तेदारों के हमरा लखनऊ से जम्मू आ रही थी, ताहम जम्मू बस अड्डे से अचानक वो गायब हो गई। समीरा फारूक के 2 बच्चे हैं। घर वालों ने पुलिस से समीरा की तलाश में मदद की अपील की है। मोल तो तोर वापस आमुत जामे अड़ पे लापता गमच, यह बचन खतर द्रामस लेज तो बिस्कुट अन्न तो तम पाई किडनैप क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सूबाई सदर खालिद नजीब सहरवर्दी ने सज्जाद लोन के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला के दौरा चुनाव पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर ने कहा था कि वो वोट तकसीम करने गए और वादी चुनाव में NC तीसरे नंबर पर है। खालिद नजीब के मुताबिक चुनाव के लोगों ने उमर अब्दुल्ला के दौरे को कामयाब करके दिखा दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रेकनिंग फोर्स है चनाब बेल्ट में भी बल्कि पूरी रियासत में। इसके बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती, ना इसकी तारीख मुकम्मल हो सकती, ना हुकूमत मुकम्मल हो सकती। शोपिया के सर्किट हाउस में बीजेपी लीडरों और कारकुनों के कोर ग्रुप मीटिंग हुई। मीटिंग की सरबराही बीजेपी के जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर सराफ ने की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वीर सराफ ने कहा कि हदबंदी के बाद इंतखाबात की बात कही गई है। शायद वो अभी खुद तैयार नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं बीजेपी कराना नहीं चाहती है। बीजेपी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस
पार्लियामेंट में बोला है डिलिमिटेशन के बाद हम तुरंत इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन बॉडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। और अब बात जेके राउंड अप की। बड़गाम के बेरवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवा की गई नाबालिग लड़की को बाजियाब कराया। इस मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। कुछ मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि मज़कूरा लड़की को शहीदगंज श्रीनगर के राहिल अहमद वानी ने अगवा करके दिल्ली पहुंचाया है। करोलबाग दिल्ली से राहिल अहमद वानी के कब्जे से मकबूल लड़की को बरामद किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन बेरवा पहुंचाया गया, जहां वो जेर हिरासत है। पुलिस ने बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया। पटन में गुज़िश्ता नमाज जुमा के दौरान एक दुकान से नकदी रकूमात लूटने वाले चोरों के गिरोह को पटन पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। कुपवाड़ा से मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने ताजिरों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिकान से हिफाजती नुक्ते नज़र से सीसीटीवी कैमरा लगाने की दरख्वास्त की। कबायली बिरादरी की सकाफत को फ़रोग़ देने और हिम्मत अफजाई के मकसद से डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर शोपियां ने महफिल मुशायरे का इनेकाद किया। केलर के दूर दराज गाँव में ज़ियारत बाबा आज़म शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कबायली बिरादरी के अरकान बशमूल तलबा ने शिरकत की। कटरा और बानिहाल के दरमियान 110 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का काम जारी है। अब बानिहाल के नज़दीक बंकुट में करीब 2 किलोमीटर लंबे टनल नंबर 77A और D को आपस में मिलाकर एक और संगे मील अबूर किया गया। इस टनल के आर पार हो जाने से बानिहाल और खड़ी के दरमियान रेलवे टनलों की खुदाई का बेशतर काम मुकम्मल कर लिया गया। 300 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रहे टनल के अंदर ब्रेक थ्रू के तकरीब के मौके पर इरकान इंटरनेशनल के इंजीनियर, BCC के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान बेग और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन हरबंस शर्मा भी मौजूद थे। टनल बनाने में ऐसी मशीन इस्तेमाल की जा रही जिससे ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। गुरेज में बख्तूर ब्लॉक के इजमर्क, जलिंडोरा और चूंठी वारी के लोगों ने नया जनरेटर नस्ब करने का मुतालबा किया। मुकामी लोगों का कहना है कि कुंजलवन में नस्ब शुदा जनरेटर से इन्हें मुनासिब बिजली नहीं मिलती, जबकि ताज़ा बालनामी बस्ती में पहले ही इजाफी जनरेटर मौजूद है। अखनूर में स्वर्ण विजय वर्ष के मौके पर 1971 की जंग में शहीद होने वाले 8 बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। साथ ही फौजियों के अहले खाना और जंग में हिस्सा लेने वाले हीरोज को हिंदुस्तानी फौज की तरफ से एजाज से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में कमांडिंग ऑफिसरान, बटालियन के अफसरान और रिटायर्ड फौजियों ने भी शिरकत की। किश्तवाड़ में जिला इंतजामिया के सुस्त और मनमाने रवैये के खिलाफ अवामी नुमाइंदों ने नाराजगी जाहिर की। इंतजामिया के रवैये से नाराज DDC, BDC मेंबरान, सरपंचों और पंचों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DDC चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर का कहना है कि अवामी नुमाइंदे लोगों की शिकायत जिला इंतजामिया के पास ले जाते हैं, लेकिन इंतजामिया की शिकायतों पर कान नहीं धरता। जिला किश्तवाड़ के संकुरा छतरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से कृष्णा मंदिर में आग लग गई। इस वाक़े में मंदिर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए। मुकामी लोग छतरों में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने का अरसे से मुतालबा करते आ रहे हैं। बलीसा के चांगा नामी इलाके में आग लगने से 3 मंजिला रिहायशी इमारत जलकर खाकस्तर हो गई। मोहम्मद अशरफ नामी शख्स की 3 मंजिला रिहायशी इमारत में गुज़िश्ता रात पुरअसरार तौर पर आग भड़क उठी थी। पड़ोसियों के रेस्क्यू के लिए पहुंचने से कबल ही आग के बुलंद शोलों ने जल्दी पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। पुंछ के मेढक कस्बे के हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब बाजार में गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश है, जिसमें जूतों चप्पलों की दुकानों में मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड अमले के बरवक्त जाए हादसे पर पहुंचने से आग पर काबू पाया गया।